السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر اظہار کے تعلق سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر الگ الگ قاعدے ہیں، وہاں پر ایک قاعدہ ہم لوگوں کو ملتا ہے جسے اظہار کہتے ہیں۔ اظہار کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہم لوگوں کو دو طریقے کے الفاظ ملتے ہیں، ایک نون ساکن ملتا ہے اور دوسرا ایک حرکت ملتی ہے جسے دو زبر دو زیر دو پیش کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کو ملا کر تنوین کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر تنوین کہتے ہیں، اور اس نون کے اوپر اگر سکون ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نون ساکن آئے وہاں پر کچھ نہ کچھ قاعدہ ضرور ہوتا ہے، اور اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش جہاں جہاں پر آپ حضرات کو ملے گا تو آپ حضرات کو وہاں پر ایک قاعدہ کسی نہ کسی صورت میں آپ حضرات کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے ایک قاعدے کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام اظہار ہے۔ دوستو، حروف تہجی میں ہم لوگوں کو دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پر الف ہے، با ہے، تا، ثا، جیم، یہ ہمارے منہ سے اور زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق یہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ مثال یہاں پر ہمارے سامنے وہ 6 کے 6 حروف ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ کو ہماری زبان سے یا منہ سے یا باہر کے حصے سے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ حمزہ کو ہمارے سینے سے ادا کیا جائے گا، حمزہ کو ادا کیا جائے گا۔ مثال حمزہ، تو ایک حروف وہ ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا حروف ہا ہے، یہ بھی ہمارے سینے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ ہا کہیں گے تو آپ حضرات کو سینے میں ایک قسم کا ایک طریقے کا وائبریشن نظر آئے گا، جیسا کہ ہا۔ جب ہا کو ادا کریں گے تو ہمارے سینے سے وائبریشن ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کے تجوید کے کچھ حروف ہیں، یہ 6 حروف میں سے وہ حروف ہیں۔ ان حروف کو سب سے پہلے ہم لوگوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا حروف عین ہے۔ عین جو ہے یہ نارمل ادا نہیں کیا جائے گا، جیسے عین، اس طرح الف اور عین میں فرق کرنا ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھا جائے گا۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہاں پر عین ہے، الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عین کو ہمیں عین ہی کی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا، جیسے ایاک نعبد، تو نعبد میں عین ہے۔ بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، یہ غلط ہے، ایاک نعبد یہ غلط ہے، اصل ہے ایاک نعبد،
ऐन का जो मखरज है, ऐन को जो निकालने की आवाज़ है, निकालने का जो तरीक़ा है, वो हमारे हलक़ से अदा होता है, वो हमारे हलक़ से अदा होता है। तो लिहाजा इसे ऐन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ऐन पढ़ा जाएगा। ये तीन हरूफ हम समझ गए। चौथा हरूफ ह है, चौथा हरूफ ह है। ये ह को और ये हा को दोनों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। ये जो हा है ये थोड़ा सख्ती से अदा होगा, ये थोड़ा सख्ती के साथ अदा होगा, जैसे हा, जैसा कि हा। अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। यहाँ पर अल्हम्दु के अंदर दोनों हरूफ हम लोगों को मिल गए। ही में हा है और अल्हम्दु में ह है। हम बाज़ मरतबा कैसा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, ये गलत है। असल क्या है अल्हम्दुलिल्लाही। तो लिहाजा ये हा को निकालने का जो मखरज है वो अलग है और हा को निकालने का जो मखरज है वो भी अलग है। पांचवा हरूफ गौइन है, पांचवा हरूफ गौइन है। ये थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा। इससे पहले भी के वीडियो में भी आप हजरात को हमारे वीडियोस में हरूफ मुस्तालिया का सबक मिलेगा। हरूफ मुस्तालिया के सबक में ये दोनों हरूफ वहाँ पर आए हैं, खा साद ज़ाद गैन तो क़ाफ व। उसमें यहाँ पर गैन है। तो एक तो गैन को मोटा भी पढ़ना है और इसी तरह हमारे हलक़ से अदा करना है, जैसे गैन, जैसा कि गैन। इसे जितना मोटा पढ़ेंगे हमारी तजवीद उतनी ज़बरदस्त और उतनी अच्छी आएगी। मिसाल के तौर पर गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, इसका सबक हम इससे पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब छठवां हरूफ जो है ये खौ है, ये खौ है। ये खौ हमारे हलक़ से अदा होता है। ये खौ जो है ये हमारे हलक़ से अदा होता है। तो ये 6 हरूफ हैं जिनको हरूफ हलक़ी कहा जाता है। अब इजहार का कायदे के लिए ये 6 हरूफ को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इन हरूफ को याद कर लें। इसे याद करने का तरीक़ा 3 हरूफ को अलग अलग कर लें। हमज़ा ह, ऐन ह, गैन ख, हमज़ा ह, ऐन ह, गैन ख। तो यहाँ पर 2 हरूफ को हम याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह एक राइमिंग के तरीक़े से हम लोगों को याद हो जाएगा। तो याद करना किस तरह है, हमज़ा ह, ऐन ह, गैन ख। तो ये राइमिंग के तरीक़े से हम लोग इन हरूफ को याद कर लें। अब इंशाअल्लाह अब नूने साकिन के बाद, नूने साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से, नूने साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ आए तो इसे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी वहाँ पर ना खींचेंगे, ना इख्फा होगा, ना गुन्ना होगा, बल्कि डायरेक्ट जिस तरह पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह इसकी मिसालें भी आप हजरात के सामने आएंगी। तो सबसे पहले कायदे को समझ लें। नूने साकिन या तनवीन के बाद, ये नूने साकिन है, ये तनवीन है। नूने साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी में के 6 हरूफ में से कोई हर्फ आए तो बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं, इससे पहले के वीडियो में हम इसके ताल्लुक़ से बात कर चुके हैं कि नाक में आवाज़ ले जाने को, क्या थोड़ा नाक में खींच कर पढ़ने को, जैसे इन्ना, इसे गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट पढ़ लेंगे। तो इंशाअल्लाह ये कायदा आप हजरात को समझ में आ गया होगा। इसी तरह 2 ज़बर है, 2 ज़ेर है, 2 पेश है। 2 ज़बर के बाद अगर हरूफ हलक़ी में से कोई हरूफ आ गया, 2 ज़ेर के बाद हरूफ हलक़ी में से कोई हरूफ आ गया, या 2 पेश के बाद हरूफ हलक़ी में से कोई हरूफ आ गया, तो वहाँ पर बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह 2 मिसालें मैं आप हजरात के सामने पेश करूँगा। पहला है तोयरन
अबाबीला, तैरन अबाबीला। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ज़बर है, यहाँ पर दो ज़बर है, दो ज़बर के बाद हमज़ा है, इसे हमज़ा कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर दो ज़बर के बाद क्या हुरूफ हलक़ी में से हमज़ा है, तो लिहाजा यहाँ पर ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल, नारुन, नारुन हामिया, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन। यहाँ पर दो पेश है, रा के ऊपर दो पेश है। दो पेश के बाद, जिसे तनवीन कहते हैं, रा के ऊपर दो पेश है और इसे तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद हुरूफ हलक़ी में से हा है, हुरूफ हलक़ी में से हा है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन या तनवीन को यहाँ पर इसे बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या होगा? नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन। अब गलत तरीक़ा आप हज़रात के सामने मैं बताऊँगा। नारुन हामियतुन, ये गलत है। नारुन हामियतुन, ये गलत है। सही तरीक़ा क्या है? नारुन हामियतुन, नारुन यहाँ पर थोड़ा स्टॉप होगा, तैरन यहाँ पर थोड़ा स्टॉप होगा, तैरन अबाबीला। इसी तरह नारुन हामियतुन। अब इंशाअल्लाह ये दो मिसालें हम समझ चुके हैं। अब आप हज़रात के सामने स्क्रीन पर कुछ हरूफ लिखे क्या नज़र आ रहे होंगे, उन हरूफ को ज़रा गौर करें। वहाँ पर हमने क्या मार्क किया हुआ है, जहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, हमने वहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो लिहाजा आप हज़रात हमारी क्या उस पेज पर इसकी तस्हीह करते हुए जाएं। इंशाअल्लाह हम इसे पढ़कर आप हज़रात के सामने सुनाएंगे। जैसे लिमन खशिया, लिमन खशिया, लिमन खशिया में नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद खा है, खा है, खा हुरूफ हलक़ी में से एक हुरूफ है। तो लिहाजा यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे लिमन खशिया मिन गैरिही, मिन गैरिही। तो यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद गैन है, तो लिहाजा इसे बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसी तरह यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा में ज़ाल के नीचे दो ज़ेर हैं, ज़ाल के नीचे दो ज़ेर हैं, तो लिहाजा बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन्हु खिताबन, मिन्हु खिताबन में नून के ऊपर सुकून है, नून पर सुकून है, इस वजह से हा और नून को बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे मिन्हु खिताब, मिन्हु खिताबन। इसी तरह मिन ऐनिन आनियतिन, मिन ऐनिन आनियतिन। तो यहाँ पर दोनों कायदे हम लोगों को मिल गए, नून साकिन का कायदा भी और इसी तरह दो ज़ेर का भी कायदा। नून के ऊपर पहले मिन, मिन ऐनिन में नून है, नून के ऊपर सुकून है, तो ऐन को बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन ऐनिन आनियतिन, ऐनिन में नून के ऊपर दो ज़ेर है, तो दो ज़ेर होने की वजह से बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कुफुवन अहद, कुफुवन अहद में वौ के ऊपर दो ज़बर है, कुफुवन अहद में वौ के ऊपर दो ज़बर है, तो बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। किसे? तनवीन को। अब इसके बाद आप हज़रात के सामने दूसरा पेज नज़र आ रहा होगा, अब दूसरा पेज नज़र आ रहा होगा जहाँ पर हमने मार्क नहीं किया है। ये आप हज़रात के लिए अब हमारी तरफ से एक मश्क है। आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज करें, थोड़ा स्टॉप करके उस क्या
وہ جو قاعدے ہیں ان قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اظہار کو سمجھنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے درمیان قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر غسل یا وضو کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔